डियर क्लास 12th, तो आज हम करेंगे किरचॉफ रूल्स। जनरली क्या होता है कि कई बार हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दिया जाता है जिसमें आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाते। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को हम किस तरीके से सॉल्व करें, किस तरीके से इक्विवेलेंट उसका रेजिस्टेंस निकालें, किस तरीके से कौन से रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, किस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। इफ द सर्किट इज कॉम्प्लिकेटेड, इन दैट केस we we use Kirchhoff's rules, right? Now Kirchhoff's rules में हमें basically दो रूल पढ़ने हैं। नंबर वन is your first rule is called junction rule. This junction rule is based on the principle of conservation of charge. And second rule that we are going to study under Kirchhoff's rules is loop rule, which is based on conservation of energy. It is based on conservation of energy. Now let us discuss one by one what is junction rule, what is loop rule. Let us move on to the second slide. Now here the statement of junction rule is given. Let us try to understand what does it mean. Junction rule states that at any junction, now what is junction? Junction is joint of two or more wires. Suppose this is a wire and some current I1 is flowing into it, and there is another wire, and in this wire current I2 is flowing into it, through it, and this is junction, this is joint. And after that there are say three wires emerging out of it, and in these three wires current may be different. So let us say the current in this wire is I3, current in this wire is I4, current in this wire is I5. So according to junction rule, at any junction, this is junction. So at any junction, the sum of the currents entering the junction is equal to the sum of the currents leaving the junction. मतलब इस जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है I in is equal to the current going out of this junction. Why is it so? It is because we are assuming that current is steady. We are assuming that at junction there is no accumulation of charge. Under these two conditions only, when the current is steady and there is no accumulation of charge, incoming current is going to equal to outgoing current. So in this case, in this figure, if I apply junction rule, then I1 plus I2, because this is the incoming current at the junction, it will be equal to the outgoing current, and outgoing current is I3, I4 and I5. So sum of all these currents, so I3 plus I4 plus I5. So this is junction. Now let us discuss the another rule. Second rule is called loop rule, and I told you that loop rule is based on conservation of energy. So in order to understand loop rule, let us make a simple loop, one loop. Let us consider that in this loop we have a cell, and the cell is connected to some resistance R, and the circuit is closed. Even if it is not looking closed, let us assume that the circuit is closed. If circuit is closed, then some current must be flowing through it. Let us assume the EMF of the cell is E, or let us say that its value is V, and current flowing in the circuit is I. So according to loop rule, the algebraic sum of the changes in potential around any closed loop involving resistors, cells in the loop is 0. कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी क्लोज लूप में अगर आप टोटल पोटेंशियल निकालोगे, total potential, sum of all the potential, I goes from 1 to n, जितने भी potential drop हैं, sum of all the potential drop is 0. Let us apply it in this loop. So in this loop, according to
loop rule, the potential drop across this cell is say V, and potential drop across the resistance will be from Ohm's law. It will be equal to IR. It will be equal to 0. So this is loop rule. Now you must ask, sir, why have you introduced minus IR here? Right? So in order to understand that, we are going to introduce some rules to solve the circuit. Anyways, if I see this circuit, let us name this point A, let us name this point B. Right? So if this point A is at high potential, VA is at high potential, VB is at low potential. In a closed loop, you have to complete the loop. You can move in any direction, maybe it clockwise, maybe it anti-clockwise. So let us name these 2 points A and B. So A is at high potential, B is at low potential. That is why current is flowing from A to B. Right? So in this case, the potential drop across the resistance will be IR, and it will be positive. Let us solve it on another page. I am telling you that this is circuit, right? And this is our cell. The potential of the cell is V, the resistance is R, and I am naming these 2 points as A and B. And remember, this point will also be B, this point will also be B, because they are just wires. The resistance of the wire, we are considering it as 0. So this is also A. Right. Now A is at high potential, B is at low potential. We have to close the loop. So VAB plus VBA is equal to 0. We have to prove this. Now VAB is VA minus VB. VBA is VB minus VA. It is equal to 0. वैसे आप अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स जानते हो तो VB कैंसिल आउट हो जाएगा, VA कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे भी 0 आ जाएगा. अदरवाइज ऑल्सो VA माइनस VB निकालते हैं. VA माइनस VB is IR from Ohm's law, because this A is at high potential, B is at low potential, so it will be positive. Now let us check VB minus VA. B is at low potential, A is at high potential. So here we are going through battery from negative to positive, and I will take it as नेगेटिव, बिकॉज हम छोटी वैल्यू में से कम वैल्यू को, बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं. तो आई आर माइनस वी लिखूँ चाहे मैं वी माइनस आई आर लिखूँ, एक ही बात है. ठीक है. सो दिस इज लूप रूल. नाउ लेट अस अप्लाई इट ऑन सम एग्जाम्पल. तो आपको ये फिगर दिख रही है. इस फिगर में आपकी आसानी के लिए जो है ऑलरेडी करंट की डायरेक्शन बनाई हुई है. अदरवाइज क्वेश्चंस में करंट की डायरेक्शन नहीं दी गई होती. ठीक है. तो वो हमें अपनी तरफ से ही एज्यूम करना पड़ता है. ठीक है. तो हम देखें तो देखो, ये 45 वोल्ट की जो बैटरी है, यहाँ से इसने करंट इमर्ज किया हुआ है, एंड ये जो करंट की वैल्यू है वो I3 है. ठीक. पहले हम हमेशा क्वेश्चन में कौन सा रूल लगाएंगे? पहले हम हमेशा करंट में लगाएंगे, किसी भी सर्किट में लगाएंगे जंक्शन रूल. इस बात को ध्यान रखना. तो पहले हम जंक्शन रूल अप्लाई करते हैं. तो जब जंक्शन रूल देखो जरा, यहाँ पर है, इस ए पॉइंट पर एक जंक्शन दिखाया हुआ है, I3 आ रहा है, और इस जंक्शन से करंट दो निकल रहे हैं, I1 और I2. इफ आई अप्लाई जंक्शन रूल ओवर हियर, आई विल गेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. आउटगोइंग करंट I1 और I2 हैं, इस जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहे हैं, और इस जंक्शन की तरफ कौन सा आ रहा है? I3. तो I3 must be equal to I1 plus I2. So this is my first equation according to junction rule. Now we have two loops, or we can say we have three loops. अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे इसने इसका नामकरण नहीं किया हुआ है, तो हम we can give it the name. So let us consider the loop which is given above, the loop AHDBA. This is a closed loop. कौन सी लूप की बात कर रहा हूं मैं जिस लूप की बात कर रहा हूं वो है AHDBA. इस लूप में
हमें अब लूप रूल लगाना है, ठीक है। लूप रूल लगाने से पहले मैं आपको एक रूल समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इक्वेशन बनाना इजी हो। किसी भी क्लोज लूप में अगर हमारा करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, सपोज करो ये एक बैटरी है, ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, अगर हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है, सपोज इसकी वैल्यू है 5 वोल्ट सेल की, तो अगर हम इस तरीके से अगर हमारा करंट मूव कर रहा होगा, ठीक है, या हम ऐसे मूव कर रहे हैं, जैसे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहे हैं, वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं, तो हम इसको लेंगे -5, ठीक है। अगर हम ऐसे जा रहे होते, मान लो ये सेल इस तरीके से दिया होता और सेम वैल्यू है 5 वोल्ट, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इसमें भी अगर हम इसी तरीके से जाएंगे किसी क्लोज लूप में, तो हम इसको लेते, क्योंकि हम माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं, विल टेक इट एज +5। तो अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे तो -5 लेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे तो +5 लेंगे। पहला रूल क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारी लूप के अंदर रेजिस्टेंस आता है, तो सपोज हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू है R और करंट की वैल्यू है I, ठीक है, करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है और हम भी इसी तरफ चल रहे हैं क्लोज लूप में, क्योंकि जब हम क्लोज लूप में जाएंगे तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है कैसे मूव करो। तो अगर करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन सेम है, वी विल टेक द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R एज -IR, सेम डायरेक्शन याद रखना, ठीक है, सेम डायरेक्शन पे हम -IR लेंगे। और यही अगर केस होता, बिल्कुल सेम यही करंट है और यही रेजिस्टेंस है, लेकिन अब हम अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं, मतलब करंट जो है राइट साइड जा रहा है, हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दैट केस वी विल टेक द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एज +IR। ये दो रूल है, रेजिस्टेंस के लिए और बैटरी के लिए, ठीक है, सेल बैटरी के लिए। अब हम अप्लाई करते हैं इस सर्किट पर। तो इस सर्किट को हम देख लेते हैं कि भैया इस सर्किट में हम D से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इन लूप, ये मैं मिटा देता हूं पहले, सो आई एम टेकिंग द लूप D B A H D, D से शुरू हुए D पे खत्म, क्लोज लूप हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम जब D से C जा रहे हैं, D से C जाएंगे पहले, अच्छा ये C पॉइंट भी था, मैंने C नहीं देखा, अब यहाँ पे C भी लिख दीजिए, D C B A H D, ठीक है, D से शुरू D से खत्म। तो जब हम D से C जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, वी विल टेक पॉजिटिव, तो हम इसको लेंगे 45, यहीं पे लिख दूँ, अगले पेज में लिखता हूँ, ठीक है, हम इसको लेंगे 45। क्यों लिया 45, क्योंकि हम बैटरी में माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। DC हो गया। अब हम करते हैं CB पे, CB पे देखो हम C से B जा रहे हैं और करंट भी C से B जा रहे हैं, देखो करंट का एरो जो है लेफ्ट साइड है, हम भी लेफ्ट साइड जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब माइनस। अच्छा इसमें करंट कितना है I3 और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो वी विल टेक इट एज 1 into I3, 1 into I3 is I3। Now let us move on to third component। अब हम आ गए हैं B पर। अब B से जब A पर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन सेम है, हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू 40 है, करंट की वैल्यू I3 है, तो इट विल बी 40 I3 प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि सेम डायरेक्शन है हमारी और करंट की। So the resistance was 40 and the current is I3, ठीक है, सही लिख रहा हूँ मैं, 40 है ना, 40 है। अब A से हम यहाँ इस तक जाएंगे, कोई डिवाइस नहीं है, जब यहाँ से हम A से H पर आ रहे हैं तो करंट की और हमारी डायरेक्शन अगेन सेम है, माइनस लेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 है और करंट की वैल्यू कितनी है I1, तो दिस विल बी 30 I1, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन है, -30 I1। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें -30 I1।
1। कुछ और रह गया इसमें, इस क्लोज लूप में? अच्छा, इसके बाद हम H से D पर जाएंगे, कुछ भी नहीं है बीच में, तो लूप हमारी क्लोज होगी। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई? इक्वेशन बहुत ही सिंपल सी है, क्लोज लूप हो गई। तो क्लोज लूप में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? 0। सो दिस इज आवर इक्वेशन। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने का हमें मिलेगा 45 माइनस 40 प्लस 1 41i3 माइनस 30i1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज वन इक्वेशन। सेम प्रिंसिपल हम लोग नीचे वाली लूप में भी लगाएंगे, विल गेट अनदर इक्वेशन। कुछ इक्वेशन मैच कर रही है इसमें, देखो माइनस 30i1 माइनस 41i3, इस इक्वेशन को देखो, ठीक है, माइनस 30i1 माइनस 41i3 प्लस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हमारा आंसर क्या आ रहा है? माइनस 30i1 माइनस 41i3 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग इट? सिमिलरली यही चीज़ अगर हम जो है नीचे वाले लूप पे लगाएंगे तो हमारा आंसर जो है माइनस 30i1 प्लस 21i2 माइनस 80 आएगा। नहीं आएगा तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसने जो ये जो नीचे वाली लूप ली है, नीचे वाली लूप, ये वाली लूप नहीं ली, इसने पूरी मेरे ख्याल से क्लोज लूप ली है, 80 वोल्ट वाली लूप ली है। क्योंकि अगर हम ये वाली लूप लेंगे डी सी बी ए जी एफ ई डी, तो इसके अंदर हमारे पास कितने सेल आ रहे हैं? एक 80 वोल्ट का सेल आ रहा है, एक 45 वोल्ट का सेल आ रहा है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो 80 प्लस 45 में 80 माइनस 45 आएगी, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। जब हम सॉल्व करेंगे तभी आएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन, इसमें सेकंड इक्वेशन दे रखी है, वो इस लूप की नहीं है, ये पूरी बड़ी वाली लूप की है। ये बड़ी, वो जो पूरा कंप्लीट गोल सा सर्किट दिख रहा है, इस लूप की है। बीच वाली वायर वो एज्यूम कर रहा है कि नहीं है, तब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो प्रिपेयर टू इक्वेशन। इसके बाद मैथमेटिक्स से आपको सिर्फ सॉल्व करना है इक्वेशन इन दिस इज इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो यू कैन रिप्लेस i3 बाय i1 प्लस i2 एंड even solve it easily. Okay, after that let us move on to the next question. ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिमेट्रिकल है, इसलिए इजी है सॉल्व करना। क्या आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? आंसर इज नहीं निकाल सकते, क्योंकि मतलब निकालना इतना इजी नहीं है अगर हमें किरचॉफ रूल्स नहीं पता होता, ठीक है। लेकिन हमें किरचॉफ रूल पता है तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में वैसे पूछ क्या रहा है? एक बैटरी है 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी दिख रही है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है 0 मान लो। द डायगनली अपोजिट कॉर्नर, एक क्यूब है, उसके डायगनली अपोजिट कॉर्नर पे हमने जो है बैटरी कनेक्ट की हुई है। कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर, 12 रजिस्टर्स में लगे हुए हैं हर एक एज पे, और हर एक एज पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 1 ओम है, करेक्ट। Now determine the equivalent resistance of the circuit of the network and the current along each edge. Because क्वेश्चन में जो आर्म्स हैं, रेजिस्टेंस है, हर उसमें सिमेट्रिकल है, तो इसने सिंप्लिसिटी के लिए करंट 3i ले लिया। आप चाहते तो i भी ले सकते थे। अब देखो हम इस क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो इसने एज्यूम किया कि जो करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है? 3i चला। अब 3i से ए जंक्शन पर जब हम आए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी i है, यहाँ पर भी, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, तीनों 1 ओम है, बराबर है। तो तीनों में सेम करंट जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 3i को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो i आ जाएगा। तो इसमें भी i गया, इसमें भी i गया और इसमें भी i गया, सिंपल। अब हम किसी एक लूप पे फोकस करते हैं, बाकी लूप भी आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो ए से बी वाली लूप, ए से बी वाली वायर में, इस वायर में आई करंट आया। अब हम बी पर आ गए, बी पर आते ही फिर से करंट डिवाइड होगा, क्योंकि फिर से जंक्शन आया। अब जब जंक्शन आया तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 1 ओम है, यहाँ पर भी 1 ओम है, इक्वल रेजिस्टेंस है, तो फिर ये आई भी जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो I/2 I/2, तो इन दोनों वायर में I/2 करंट जाएगा, ठीक है। अच्छा, I/2 करंट गया। अब हम आए सी पर। जब हम सी पर आए तो अब आप देखेंगे कि सी के ऊपर ये 2 जो हैं करंट आ रहे हैं। सी के ऊपर एक तो I/2 आ रहा है और एक इधर से भी I/2 आ रहा है। अगर आप इसे फर्दर आगे सॉल्व करते हैं इन लूपों में तो यहाँ से भी I/2 करंट आएगा, ठीक है। तो I/2 आ रहे हैं तो तीसरी वायर में ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, क्योंकि इनकमिंग करंट मस्ट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। कोई भी लूप ऐसी नहीं होगी कि करंट आए और जाए ना। अगर करंट आ रहा है, इनकमिंग करंट भी है, तो कहीं से जाएगा भी। तो ये 2 वायर से जो करंट आ रहा है, इट विल ऐड अप एंड वी विल गेट I। आफ्टर I हम सी से सी पर जा रहे हैं। ये इसमें शायद
मे बी सी से सी डैश जा रहे हैं, इसमें वैल्यू है आई। आप देखेंगे कि सी डैश वाला जो जंक्शन है यहाँ पर आई आ रहा है, ऊपर सी से सी डैश आई आ रहा है, बी डैश से सी डैश आई आ रहा है, डी डैश से सी डैश भी आई आ रहा है। ये तीनों करंट आ रहे हैं तो ऐड होंगे, आई 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 3i, और ये लास्ट वायर है जो बैटरी से कनेक्टेड है उसमें करंट सारा ऐड होकर 3i हो जाएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन चेक करना है कि आप सही सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो पहले आप लूप रूल लगाएंगे और आप चेक करेंगे कि बैटरी से जितना करंट गया वापस बैटरी में उतना करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ कर दी है, कहीं आपने जंक्शन रूल सही से नहीं लगाया है। तो इसमें जंक्शन रूल हम समझ गए। अब हम लगाएंगे किरचॉफ्स का लूप रूल। तो लूप रूल लगाने के लिए वी टेक द लूप ए बी सी सी डैश ई ए, क्लोज लूप हो गई, ए से शुरू ए से खत्म, ठीक है। तो हम पहले ए से स्टार्ट करते हैं। ए से जब बी जा रहे हैं हम, तो हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम है, माइनस आई। जब बी से सी जा रहे हैं हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम है, -i/2। आप लोगों से रेजिस्टेंस नहीं लगाया, रेजिस्टेंस 1 है इसलिए 1 into something is 1, 1 into something is that something, say 2 into 1 is 2, तो i/2 into 1 is I into 1 is I। अब जब हम C से C डैश जा रहे हैं, अगेन द करंट इज I, so I will get I, ओके। इसके बाद हम C डैश से यहाँ आए, कोई भी डिवाइस नहीं मिली। अब हम C डैश से जब E आएंगे तो बैटरी मिल गई, और बैटरी में हम माइनस से प्लस आ रहे हैं, तो माइनस से प्लस आ रहे हैं तो विल टेक प्लस, सो +10। और E से A आएंगे, कुछ भी नहीं मिल रहा, क्लोज लूप हो गई, इट इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, -i -2i -i/2 +10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, यू गेट 4 + 1 -5i +20। बड़ी गंदी राइटिंग है ये, मैं फिर से लेता हूँ। सो -5i +20 इज इक्वल टू 0, एंड सॉल्व करोगे आप तो i मिल जाएगा 20 डिवाइड बाय 5, दैट इज 4 एम्पेयर। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है इस डिवाइस में, 4 एम्पेयर? नो, करंट हमने माना था 3i, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? आंसर इज 3i, करंट इन सर्किट इज 3i, और i की वैल्यू हमारी 4i, तो टोटल करंट हो गया 3 into 4, that is 12 ampere. Now let us calculate resistance. So we know that V is equal to IR equivalent. Voltage is 10 volt, current is 12 ampere, R equivalent निकालना है, you'll get R equivalent as 10/12 ohm, or simply 5/6 ohm. Okay, so apply this Kirchhoff's rules in some example given in your exercise, और हमने जो क्वेश्चंस छोड़े हैं वो भी, उसमें भी आप Kirchhoff's रूल लगाइए। कोई डाउट आता है, you all can ask anytime. So that's all from Kirchhoff's rules.